हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और डिक्टेशन दे रहा हूँ लीगल मैटर की, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 37 और ये है 83 वर्ड्स पर मिनट पर 5.2 मिनट्स की है और 433 वर्ड्स हैं इसमें। इसके बाद डिक्टेशन के बाद मैंने इसमें आउटलाइंस दी हैं जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं। वो आउटलाइंस पहले आप ट्रांसक्रिप्शन करिए, उसको चेक करिए, बाद में उसको आप आउटलाइंस को देखिए, तब आपको लगेगा कि आपने जो लिखी हैं और जो एक्चुअल आउटलाइंस होनी चाहिए उसमें क्या डिफरेंस है, और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसी एक्सरसाइज को 2-3 बार ज़रूर लिखिए, चाहे नॉर्मल स्पीड पे चाहे इंक्रीज करके लिखें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जितना आप उसको करेंगे एक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से, उतना आपकी कॉम्पिटेंसी में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद आउटलाइंस जो हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि लाइट और डार्क का PB, TD, JJ या KG जो भी हैं, अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए, और पेन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनको लाइट और डार्क का, क्योंकि पेंसिल तो लाइट और डार्क हो सकती है, पेन में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। उसके बाद मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम जिनका भी अभी नज़दीक आ रहा है उनको ये कहूँगा कि अगर आपके ग्रामरलॉग्स वीक हैं तो ग्रामरलॉग्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो आप पूरी आउटलाइन लिखें और ग्रामरलॉग भूल जाएं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार हम उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो ग्रामरलॉग भी रिवाइज़ करिए। और ऐसे ही मैं हर कोशिश करूंगा आपको टिप दे दूं हर डिक्टेशन से पहले। और अब मैं डिक्टेशन शुरू करता हूं। थैंक यू। प्लीज गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 37 फ्रॉम अ लीगल मटेरियल। 5 seconds. Start. This is a petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, whereby the petitioner seeks to challenge the award dated 19/3/2001 passed by the sole arbitrator. Stop. At the outset, I may note that the counsel for the petitioner has stated that he has not been able to receive instructions from his client, although strenuous efforts were made by him. Stop. This, according to the counsel, may possibly be because the petitioner has become a sick company, and after the proceedings before the board for industrial and financial reconstruction concluded, orders have been passed for winding up of the company. Stop. Mr. Podar has therefore assisted the court to the best of his ability on the basis of the record as available. Stop. The disputes which arose between the petitioner and the respondent was with regard to the contract awarded by the petitioner to the respondent pertaining to providing of services of shore handling, including bagging and standardization, clearing and forwarding of imported fertilizer from the port of Gujarat. Stop. The scope of hearing of objections under section 34 is now well settled. Stop. This court can interfere with the findings and conclusions of the arbitrator only if the award is illegal or against the provisions of the contract, or is so perverse that it shocks the judicial conscience. Stop. This court does not sit as an appellate
court to reapprise the entire findings of the arbitrator. Stop. Once the view which is taken by the arbitrator is a plausible view, this court will not interfere with the findings and conclusions merely because a different view is possible, as is sought to be canvassed by the objector. Stop. Keeping these aforesaid principles in mind, I have considered the arguments of Mr. Sanjay Podar, the counsel for the objector. Stop. The first objection on behalf of the petitioner was with respect to claim number 1, whereby the arbitrator decided the issue of non-liability of the contractor for demurrage charges. Stop. The arbitrator has arrived at a finding of fact that delay in uploading the vessel and the consequent demurrage charges were on account of failure on the part of the petitioner to give the original bill of lading, and in the absence of which the master of the ship refused to unload the cargo. Stop. This aspect is not disputed, that the original bill of lading was not given by the petitioner to the contractor, and what was contended before the arbitrator was that in spite of the non-availability of the original bill of lading, the contractor ought to have persuaded the master of the ship to release the goods on an indemnity bond. Stop. Okay students, now let us see the outlines. पहली है under section. On the line लिखिए, under section इकट्ठा लिख सकते हैं आप, no problem. उसके बाद है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. अब देखिए आर्बिट्रेशन के नीचे भी मैंने डबल टिक दिया है और कंसिलिएशन के लिए भी दिया है और एक्ट के नीचे भी दिया है, क्योंकि ये एक्ट का नाम है. जब एक्ट का नाम होता है तो उसमें अब आर्बिट्रेशन का ए और कंसिलिएशन का सी और एक्ट का ए तीनों कैपिटल आएंगे, और इसके बाद कॉमा होगा, उसके बाद जो ईयर लिखा है 1966 या जो भी ईयर है वो होगा, उसके बाद फिर कॉमा होगा. तो ये जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं टेक्स्ट में, जब आप कंपेयर करते हैं तो ऐसी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे लिखी जाती हैं. तो एक्ट का, बिल का, किसी का भी प्रॉपर नाउन में आ जाता है ये एक तरह का कि किसी का नाम है, ये एक एक्ट का नाम है. एक्ट का नाम हमेशा जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे. इसमें ए और सी और ए तीनों कैपिटल आएंगे. उसके बाद हम आते हैं अवार्ड. अवार्ड में आपको ध्यान देना है कि डब्ल्यू को आपने डबल करना है, आर जोड़ना है उसमें, और फिर डी लिखना है, अवार्ड. नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर जब होता है तो टी आर को आपने डबल करना है. तो ये बहुत केयरफुली लिखनी होती हैं आउटलाइंस, ताकि आप उसको पढ़ते वक्त ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, और जितना आप लिखने में ध्यान देंगे प्रॉपर लिखने में, उतना आपको पढ़ने में भी आसानी होगी. नेक्स्ट है एट द आउटसेट. इसकी एट द सेट है, आउटसेट अंडरस्टूड है, इसमें आपने पहले भी देखी होगी आउटलाइन. एट द आउटसेट मीन्स इन द बिगिनिंग. उसके बाद मैंने आउटलाइन दी है पेटिशनर की, फुल आउटलाइन है ये. उसके बाद मैंने ओब्लिक करके आपको एक तो प्रैक्टिशनर की शॉर्ट आउटलाइन दी है, पी आर को आर से काटते हैं तो प्रैक्टिशनर होगा, लेकिन अगर आप पी और को आर से काट सकते हैं तो वो पेटिशनर भी बन सकता है. तो ये आप ध्यान रखिएगा, बट इसमें आपने प्रॉपर बनाना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी ना हो. आउटलाइन छोटी है लेकिन उसको हमने लिखना भी ठीक है. उसके बाद है ये फ्रेज है, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू. ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, बट मैंने फिर भी बना दिया है. जिनको नहीं आता हो वो देख सकते हैं.
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में एस प्रॉपर बनाइए। सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक है, आप सब जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी लिखें उसको प्रॉपर लिखें। उसके बाद है वर्ड क्लाइंट। क्लाइंट में KL और आपको N की हुक देनी है और K हाफ हो जाएगा क्लाइंट। आई जरूर लगाइए उसमें ताकि आप पहचान सकें क्लाइंट। और उसके बाद वर्ड है स्ट्रेनुअस। STRENUOUS। स्पेलिंग भी इसके थोड़ा ध्यान रखिएगा। STRNS स्ट्रेनुअस। नेक्स्ट वर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू द। तो अकॉर्डिंग टू द में आप शॉर्ट ही ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रोसीडिंग्स की आउटलाइन दे दी है, जिसमें नीचे आपको इंक्स का डैश लगाना है, प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल है, नॉर्मली लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है फाइनेंशियल में। फाइनेंस और फाइनेंशियल में SHL लगाइए जरूर फाइनेंशियल में। फाइनेंस में जरूरी नहीं है। तो आउटलाइन पूरी तब होगी जब आप उसको पूरा बनाएंगे और समझेंगे। फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आर के साथ ऑलमोस्ट ज्वाइन करके लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने डिसज्वाइन कर दिया, दूर लिख दिया इसको, तो आवर कंस्ट्रक्शन या कुछ भी आप पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है ऐसी आउटलाइन में। नेक्स्ट आउटलाइन है कंक्लूडेड। कंक्लूड में KL हाफ होता है, कंक्लूडेड में KL पूरा और D हाफ। उसके बाद है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग देख रहे हैं आप, आई लगा दीजिए, वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप होता है टू कंक्लूड समथिंग, वाइंड अप करना मीटिंग को या किसी मैटर को। उसके बाद आया था मिस्टर पोदार। तो मिस्टर और पोदार आप ऐसे लिख सकते हैं, और जैसे भी आप लिखें, आप पोदार इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। और ये भी मुश्किल नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी कॉम्पिटेंसी कैसे है। जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है असिस्ट और असिस्टेड में आपको डिफरेंस बताया है। असिस्ट ऐसे होगा, ST हुक लगेगी, और असिस्टेड में भी मैंने आपको दिखाया है T हाफ होगा। उसके बाद एबिलिटी है। आप एबिलिटी को नेचुरली अबव द लाइन लिखेंगे और A भी लगा दीजिए। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द। अब इसमें अगर आप द भी बाहर निकाल देंगे तो आप इजीली उसको ऑन द बेसिस ऑफ द 5 वर्ड आप इकट्ठे लिख सकते हैं। बट ध्यान से लिखा करिए हर आउटलाइन को। नेक्स्ट है अवेलेबल और वैल्यूएबल। दोनों में मैंने डिफरेंस दिखाया है। अवेलेबल और वैल्यूएबल में पहला अवेलेबल है, दूसरा वैल्यूएबल है। दोनों अबव द लाइन आएंगे। नेक्स्ट आउटलाइन मैंने डिस्प्यूट की दिखाई है, सिंपल है, लेकिन मैंने इसलिए बताई है कि आपको रिवीजन हो जाए, और नहीं आता तो आपको पता लग जाए। अरोज देखिए, इन आउटलाइंस को जितना अच्छा लिखेंगे उतनी आपकी ट्रांसक्रिप्शन अच्छी होगी। रिस्पोंडेंट नीचे है। नेक्स्ट उसके बाद है विद रिगार्ड टू द। उसके बाद है अवार्डेड। अवार्ड में आपने D पूरा लिखा था और अवार्डेड में D हाफ होगा। और आप चाहें तो नेक्स्ट आउटलाइन मैंने बताया है, आप उसको कट कर सकते हैं अवार्ड और अवार्डेड में डिफरेंस के लिए। उसके बाद जो है हैंडलिंग। हैंडलिंग में डॉट लगा नीचे, बी केयरफुल, लगाने भी सीखिए और उसको टाइप करते वक्त भी आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद है बैगिंग। और नेक्स्ट वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स को एशन कर दीजिए, वो भी ऑप्शन है। अदरवाइज मैंने पूरी आउटलाइन भी नीचे दी है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और स्टैंडर्ड लिखने की अगर आपको हैबिट है, जैसे मैंने लिखा है, तो उसके साथ स्टैंडर्ड्स होता है, और स्टैंडर्ड्स के अपोजिट हम शन लगा देंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकता है। आप चाहें तो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है फॉरवर्डिंग। सिंपल है, फॉरवर्ड का फॉरवर्डिंग। उसके बाद है इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स। इंपोर्टेड आप देख रहे हैं, थ्रू द लाइन लिखेंगे नेचुरली। इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स प्लूरल है तो इसको एस भी आपने ध्यान से लगाना है। उसके बाद है गुजरात।
और गुजरात में GUJARAT होता है, इसमें स्पेलिंग भी शायद उसने एक ए मिस कर दिया, देख लीजिएगा। उसके बाद आउटलाइन है स्कोप ऑफ। अगर इसके साथ ऑफ द होता तो हम टिक और लगाते, लेकिन स्कोप ऑफ है तो हमने एफ की हुक लगा दी है। नेक्स्ट है सेटल्ड। सेटल्ड में टी हाफ हो जाएगा, STL। और उसके बाद है इंटरफियर, सिंपल आउटलाइन है। फाइंडिंग्स भी सिंपल है। नेक्स्ट है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में मैंने इसलिए लिखा है कि आप एस ध्यान से लगाइए करिए। कंक्लूजन्स कॉन और एस दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इलीगल, सिंपल। नेक्स्ट है अगेंस्ट द। अगेंस्ट के बाहर निकाल दीजिए द को, अगेंस्ट द, लेकिन पढ़ना भी आपने ध्यान से है उसको। उसके बाद वर्ड है परवर्स, PERVERSE। परवर्स फाइंडिंग आता है ज्यादातर। परवर्स मीन्स अनफेवरेबल, तो परवर्स फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है जुडिशियल। जुडिशियल, और जुडिशियल के बाद है कंसाइंस, जुडिशियल कंसाइंस। कंसाइंस बोलते हैं अंतरात्मा, और इससे जो दूसरा वर्ड होता है वो कॉन्शियस होता है, उसमें SH श लगता है, कॉन्शियस। कॉन्शियस और कंसाइंस मैंने दोनों की आउटलाइन बताई है आपको। नेक्स्ट है एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल भी बोल सकते हैं इसके, प्लॉसिबल भी बोल सकते हैं। जैसे पॉसिबल होता है वैसे ही आपने PL बना देना उसमें, प्लॉसिबल। और उसके बाद है कैनवेस्ड। कैनवेस, CANVASS, कैनवेस से कन्वेस्ट। उसके बाद है ऑब्जेक्टर। ऑब्जेक्ट तो के को डबल कर दें, ऑब्जेक्टर। उसके बाद था वर्ड नॉन लायबिलिटी। नॉन लिख के लायबिलिटी, सिंपल। और लास्ट में आउटलाइन है डैमरेज। इसमें आप स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा, डैमरेज, DEMURRAGE, डैमरेज। नेक्स्ट आउटलाइन है बिल ऑफ लेडिंग। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, मैंने बिल ऑफ लेडिंग ऐसे कर दिया है, सिंपल है इसमें। और नेक्स्ट है अनलोड। लोडिंग और अनलोडिंग, ये अनलोड है। अनलोड के बाद है कार्गो, सिंपल, अनलोडिंग द कार्गो। कार लिख के और गो उसके साथ लगाना है। उसके बाद है मास्टर। मास्टर में STR की हुक ध्यान से बनाइएगा। नेक्स्ट इज कहीं आप ST लगा दिया तो आप मस्ट पढ़ते रहेंगे, या कुछ मास्टर में आप STR क्लियर दीजिए। डिस्प्यूटेड, इसमें U लगाना चाहें एंड में आपकी मर्जी है, अदरवाइज डिस्प्यूटेड है ये। कंटेंड और कंटेंडेड दोनों मैंने इसमें बताए हैं। और कंटेंशन, कंटेंड, कंटेंडेड तीनों होते हैं। इसमें कंटेंड भी है, कंटेंडेड भी है। और कंटेंशन जैसे टेंशन बनता है उसके ऊपर कौन लगेगा। नेक्स्ट आउटलाइन है अवेलेबिलिटी। अवेल करके और बी डिस्ट्रॉइन, अवेलेबिलिटी। उसके बाद आउटलाइन है परसुएड एंड परसुएडेड। जो इन आउटलाइंस को जानते होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए नया होगा, उनको प्रैक्टिस भी इसकी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि ये वर्ड्स फिर बार बार आते हैं कहीं ना कहीं किसी शेप में, तो हमें अगर प्रैक्टिस होगी तो हम उसको जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे। और जो लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट इनको उनको रिवीजन करना चाहिए इसका ड्रॉ करके, ताकि और पक्की हो जाए ये चीज़ें। परसुएड, परसुएडेड। और लास्ट वर्ड है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, किसी लॉस को इंडेमनीफाई करना, पूरा करना। इंडेमनिटी में पूरी आउटलाइन आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।